Hello students, how are you? And due to COVID-19, all school are being closed nowadays. Then we have decided, our management have decided for starting online classes, and we are teaching before 7 days, 8 days online classes. And today I am going to teach class 9th and 10th. Chapter name is sentences. Okay, students, have you understand my words? You will understand my words perhaps. Okay, and come at whiteboard. Sentences. Chapter name is sentences. So today I am teaching you. I am explaining you about sentences. What is a sentences? Kinds of sentences, and those students who study class 9 and 10th, you have to see this session very carefully. Okay, students. What is a sentences? Sentences is a group of words give us complete sense is called sentence. I have already explained in class before 1 month when our class was going on. Okay, student, you are understanding what I am saying? Okay. Sentence is a group of words give complete sense is called sentence. Okay. Next, kinds of sentence. There are 5 kinds of sentences. First one is assertive sentence. Second one is interrogative. Third one is imperative. Fourth one is exclamatory, and last optative. Okay. I am mentioned here. If you want to note down, you can note down. Okay, students. Now I will explain about what is a assertive sentence. The sentence which gives us negative and positive idea is called assertive sentence. The sentence which gives us assertive and positive idea is called assertive sentence. For example, look here. I am teaching you. I am teaching you. This is a assertive sentence. And there are 2 types of assertive sentence. One is a affirmative sentence. A second one is a negative sentence. The sentence which I am mentioned here, this is a assertive sentence and affirmative sentence. Because I have written here, I am teaching you. Okay? Next example. I am not teaching you. TWF अब मैं आप लोग को हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि पता नहीं आप लोग समझ पा रहे कि नहीं प्रॉपरली. अब मैं हिंदी में बताऊंगा तो आप लोग शायद प्रॉपर समझ सकें. ठीक है, एक बार मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखा है सेंटेंसेस की काइंड, और मैंने आपको बताया है कि सेंटेंसेस की डिफाइनेंस मैंने बताया है, शायद आपको लर्न भी होगा. और मैंने सेंटेंसेस की काइंड भी यहाँ नोट डाउन किया है.
और जो लड़के सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं इस सेशन को अगर देखेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए सेंटेंस मैंने डिफाइन बता दिया है ऑलरेडी, और सेंटेंस की काइंड असर्टिव, इंटरगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, अब असर्टिव की 2 काइंड बताई है, फर्स्ट अफर्मेटिव देन नेगेटिव। ओके, तो व्हाट इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस? The sentence which gives us positive idea is called affirmative sentence। मैंने कहा है यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कहा नहीं। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऐसा क्या? मैंने एक कहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सकारात्मक सेंटेंस है, सकारात्मक है, इसीलिए जो सेंटेंस है असर्टिव का क्या है, अफर्मेटिव है। ओके, निगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक। आप लोग जानते हैं जिस सेंटेंस में भी नॉट या नो आ जाए, सिंपल से ही बात है, उसमें क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव हो गया। अब मैंने बोला मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों भैया, क्यों नकारात्मक है? इसीलिए नकारात्मक है, इसमें नॉट लग गया है। आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप फोकस करना है। ओके, अगर मैं यहाँ से इसको नॉट लगा दूं, नॉट हटा दूं, तो ये अफर्मेटिव हो गया। क्यों आ गया? इसमें नॉट भी नहीं है, ना व्हाट है। तो जिस सेंटेंस में ना व्हाट हो ना क्वेश्चन वर्ड हो, वो ना नॉट हो ना क्वेश्चन वर्ड हो, वो क्या हो जाएगा, वो अफर्मेटिव हो जाएगा। और जिस सेंटेंस में क्या हो, नॉट हो, वो निगेटिव हो जाएगा, नो हो। ये तो बहुत ही आसान है। जिसमें बोलो मैं पढ़ा रहा हूँ, सकारात्मक है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें नहीं आ गया, ये नकारात्मक है। आई होप you will be understanding properly, students। next interrogative sentence। the sentence which asks a question is called interrogative sentence। the sentence which asks a question, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, देखते हैं एग्जांपल में, सही समझ में आ जाएगा। डू यू गो टू स्कूल? I am mentioning here, do you go to school? इसका सेंस क्या हो गया, क्या आप स्कूल जाते हैं? अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले आ जाए, आपको समझाने के लिए, ये आपको मैंने इजी एक तरीके से समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसे हम इंटरगेटिव फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरगेटिव फर्स्ट। अभी मैं और एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में प्रॉपरली आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल मेंशन किया है, आर यू माय ब्रदर। मैंने ये बोला है इंटरगेटिव पहचानने के लिए, इंटरगेटिव फर्स्ट को पहचानने के लिए कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, क्वेश्चन वर्ड से हो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से हो, तो इंटरगेटिव फर्स्ट है। देखिए डू भी हेल्पिंग वर्ब है और भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो शुरुआत हो रही है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अगर आपने नहीं लगाया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे कंपल्सरी है, ठीक है। या तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो वो भी इंटरगेटिव है, या तो अगर अब फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे डू और आर निकल गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ये क्या है, इंटरगेटिव फर्स्ट है। अब इंटरगेटिव सेकेंड आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अब ये देख लीजिए, इसकी भी 2 काइंड होती है, इंटरगेटिव फर्स्ट और सेकेंड। मैंने एक को तो बता दिया, अब दूसरा ही बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो तो उसे हम इंटरगेटिव सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं,
अगर किसी क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत किससे हो, क्वेश्चन वर्ड से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड। यहां देखते हैं Why do you go to school? मैंने क्वेश्चन लगा दिया, why, क्यों, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव सेकंड है। अगर क्वेश्चन वर्ड में हट जाए, हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ वाई लगा दिया और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल में ध्यान दीजिए, मैंने लगा दिया व्हाट। व्हाट मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या क्या तुम मेरे भाई हो। अब ये क्या लग गया, अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लग गया, क्वेश्चन वर्ड लग गया, तो इंट्रोगेटिव सेकंड है। अगर केवल सेंटेंस की शुरुआत अगर क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो इंट्रोगेटिव सेकंड है। अगर सेंटेंस की शुरुआत केवल हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं जब टेंथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास में तो आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको 1 by 1 बिल्कुल समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत सारा भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैं टोटल इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आगे की वीडियो में। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट नंबर इज imperative sentence। What is imperative sentence? जिस सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट की भावना हो या जिस सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ फर्स्ट एग्जांपल इंपरेटिव सेंटेंस का। महाराष्ट्र सरकार बोल रही है 50,000 करोड़ का हो चुका मैंने मेंशन किया होल्ड इट टाइटली, इसे कसकर पकड़ो। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, इट मतलब इसे, टाइटली आप लोग जानते हैं। होल्ड इट टाइटली मैंने पहले मेंशन क्या किया, मेन वर्ब। मैंने किसी को कह दिया, किसी को मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, यार इसे तेज पकड़ो, कसकर पकड़ो। तो ऐसे सेंटेंसों में पहले क्या आती है, मेन वर्ब, फिर देन क्या आता है इसका ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखिए आप लोग इसको हटाइए। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। गो फ्रॉम हियर, मैंने आपसे बोला है ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस से शुरुआत किससे होती है, या तो ऑर्डर हो या तो रिक्वेस्ट हो। तो क्या मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, यहाँ से दे, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। तो इसकी शुरुआत पहले किससे होती है, इस प्रकार सेंटेंस की शुरुआत पहले किससे होती है, मेन वर्ब से होती है। ओके, और एक और सेंटेंस बताता हूँ इसका मैं, रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल इंपरेटिव का मेंशन कर रहा हूं। प्लीज गिव मी योर पेन। क्या सेंटेंस लिखा हमने, प्लीज गिव मी योर पेन। मैंने ऑर्डर बोला, रिक्वेस्ट बोला, कमांड बोला। ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी शुरुआत किससे होती है,
मोस्टली शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर अब रिक्वेस्ट आ गया तो हम पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले प्लीज लगा देंगे, फिर से हम क्या कर देंगे वैसे जैसे हम पहले जिस सेंटेंस को पहले बनाते थे वैसे बना देंगे। क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको इंपरेटिव सेंटेंस में और भी एक सेंटेंस में और बता देता हूँ इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। और इसमें कोई निगेटिव आ जाए तो बात मत करो, ज्यादा बात मत करो, ये भी तो ऑर्डर है, बात मत करो, ऑर्डर है ना। तो देखिए इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसमें निगेटिव आ गया, मैंने मना कर रहा हूं निगेटिव आ गया, इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्या आ जाएगा डोंट टॉक, पहले डोंट लगा देंगे फिर मेन वर्ब लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, और आपको मैं जब भी सेंटेंस की शुरुआत करूंगा, सॉरी क्लास में मैं जब टेंस की शुरुआत करूंगा तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से मैंने असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव तीनों बता दिया है। ऐसे आज आपको कम से कम 10 सेंटेंस बनाना है। किसके किसके, असर्टिव के 10, इंटरोगेटिव के 10 और इंपरेटिव के 10। और आप जब स्कूल आएंगे मैं इसको चेकआउट करूंगा, चेक करूंगा, और आपको क्या करना है, सेंटेंस की डिफाइन भी लर्न कर लेनी है, सेंटेंस की काइंड भी आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जब तक आप प्रॉपर नहीं सीखेंगे तब तक आप ग्रामर के अदर चैप्टर अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, टेंस प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। इसको प्लीज़ आप ध्यान दें। और मैं आप होमवर्क दे दिया हूँ, और कल आपके नेक्स्ट में 2 और फिनिश कर दूंगा। कौन से जो 2 रिमेनिंग है, एक्समेट्री और ऑप्टेटिव, कल आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर से मैं आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।